Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। We worship a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। Today we are going to look into a very wonderful subject. आज हम बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में देखने वाले We are हैं। going to see what God can do with our life when we are full of prayer. जब हम प्रार्थना से भरे होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, इसे हम देखेंगे। God wants His children to be filled with prayer, my friend. परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी संतान प्रार्थना से भरी हुई हो। दोस्तों, Prayer can move mountains. प्रार्थना पहाड़ हटा सकती है। God's people should be always be anointed and be filled with the power of God. परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर की सामर्थ से अभिषेक पाए हुए और भरे हुए हो। If you want to be endued with power, अगर आप सामर्थ से भर जाना चाहते हैं then you should see the power of God when you pray with all kinds of prayer. जब आप हर तरह की प्रार्थना करते हैं तब आपको परमेश्वर की सामर्थ देखनी चाहिए। This morning God wants to transform your life. आज सुबह परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। God wants to change your mindset. परमेश्वर आपकी मानसिकता को बदलना चाहते God हैं। wants to bring a new meaning into your life. परमेश्वर आपके जीवन में नया अर्थ लेकर आना चाहते God हैं। wants to bring a real transformation in your life. परमेश्वर आपके जीवन में इस असली बदलाव लेकर आना Are चाहते you हैं। ready for what God wants to do in your life? परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Let us turn to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। Let us turn to Acts of the Apostle, आइए देखते हैं प्रेरितों के काम chapter 1, अध्याय 1 verses 8. वचन 8। But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yes. Why we need prayer power? हमें प्रार्थना की सामर्थ की When जरूरत the क्यों है? supernatural is released in our life, there will be persecution, my friend. जब हमारे जीवन में वो ईश्वरीय सामर्थ खोली जाती है तो निश्चय ही सताव तो होता ही है। And the persecution will be supernatural in your life. और ये जो सताव है ये आपके जीवन में अलौकिक होगा। There may be people who are stirred against you without rhyme or reason. बिना किसी कारण से, बिना किसी बात के लोग आपके विरुद्ध में हो जाएंगे। There may be people who are stirred up against you लोग आपके विरुद्ध में उकसाए जाएंगे। that you may not know them yourself. यहाँ तक कि आप खुद उन्हें नहीं जानते होंगे They themselves will not know why they are against you. और वो खुद भी ये नहीं जानेंगे कि वो आपके विरुद्ध में क्यों हैं। With supernatural power comes supernatural persecution. अलौकिक सामर्थ के साथ में अलौकिक सताव भी आता है। You know what happened to Peter and John? आप जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना के साथ में क्या हुआ था। Let us turn to Acts of the Apostle, chapter 3, verses 1 and 2. आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 और 2। Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and a certain lame man from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who entered the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what do I have I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk." वचन 1 से 6 तक हम पढ़ते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। Yes, Peter and John went into the temple at the hour of prayer. पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में वहां पर भवन में गए They थे saw a lame man sitting and begging for alms. और उन्होंने वहां पर एक लंगड़े आदमी को बैठकर भीख मांगते हुए Then देखा। Peter looked at him and said, "Silver and gold have I none, but in the name of Jesus rise up and walk." और पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं, परंतु यीशु के नाम में तो उठ और चलने फिरने लग। The man was healed right immediately after
Peter spoke. और पतरस ने जब ये कहा तो तुरंत वो व्यक्ति चंगा हो गया था। Let us see verses 7. वचन 7 देखते हैं। And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping up stood and walking and entered the temple with God, walking, leaping and praising God. और ये कहता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। This caused a great major commotion in that place. और इसके कारण वहां पर जो लोग थे उनके बीच में बड़ी गड़बड़ी हड़बड़ी सी मच गई। And they were, because of the great commotion, Peter and John were arrested. और इस बड़ी भगदड़ के कारण या बड़ी हलचल के कारण पतरस और यूहन्ना को कैद कर लिया गया। Yes, they were arrested because of the miracle. और उस चमत्कार के कारण पतरस और यूहन्ना को बंदी बना दिया गया। My friend, this can happen even to our life. Peter and John were arrested for the miracle. और पतरस और यूहन्ना को तो वहां पर चमत्कार करने के लिए बंदी बना लिया गया। They created a great major trouble for them. और इसने उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी थी। Even this kind of thing can happen in your life, my friend. मेरे दोस्तों, इस तरह की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। What happened when they were arrested? और जब उन्हें कैदी बना दिया, बंदी बनाया गया, तो क्या हुआ? They were interrogated and they said, how can you do this kind of miracle in the name of Jesus? उनसे पूछताछ की गई कि तुम यीशु के नाम में इस तरह के चमत्कार कैसे कर सकते हो? And they questioned him for a very long time. और बहुत समय तक उनसे पूछताछ की गई। And what did they decide? और फिर उन्होंने क्या निर्णय निकाला या क्या निष्कर्ष निकाला? Acts chapter 4 verses 16, Uh, saying, what shall we do to these men? For indeed there's a notable miracle has been done through them, is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 16 कहता है, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। So they laid their hands on this man, and this man was completely healed. तो उन्होंने इस मनुष्य पर अपना हाथ रखा और ये मनुष्य तो पूरा चंगा हो गया था। And the Pharisees and the Sadducees, they were very upset with what they did. और इनका ये काम देखकर फरीसी और सदूकी तो बहुत ही परेशान हो गए। Because this man was 40 years old and he was paralytic right from his birth. क्योंकि ये जो भीख मांगने वाला था, ये 40 साल की उम्र का था और वो तो अपने जन्म से ही वो लंगड़ा था। This caused a great commotion in the midst of the people of Jerusalem. और इसके कारण यरूशलेम के लोगों के बीच में बड़ी गड़बड़ी सी मच गई। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Now the Lord supernaturally delivered them out of this captivity. अब परमेश्वर ने, प्रभु ने उन्हें बहुत ही अलौकिक रीति से इस बंधुआई से छुड़ाया। But they were beaten up. लेकिन उन्हें बेंतों से मारा गया। But they rejoiced in the persecution. लेकिन उस सताव में उन्होंने आनंद मनाया। Do not be concerned of what people will talk about you, my friend. मेरे दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, इसकी आप परवाह मत कीजिए। They did this to Jesus and they did this to the apostles. उन्होंने यीशु के साथ यही किया, उन्होंने प्रेरितों के साथ भी यही किया था। They were threatened and asked not to preach in the name of Jesus. उन्हें धमकाया गया था और कहा था कि यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना। They said, it doesn't matter, we are going to preach in the name of Jesus. उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम तो यीशु के नाम में प्रचार करते चले जाएंगे। They went back to their own company. और वो अपने लोग में, अपनी मंडली में वापस चले गए। Let us look into Acts of the Apostle, chapter 4, verses 23. आइए प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 23 को देखते हैं। And being let go, they went to their own company and reported all the chief priests and elders had said to them. वचन 23 ये कहता है, वे छूटकर अपने साथियों के पास गए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। That is why we have to have fellowship with God's children, my friend. और इसीलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर की संतानों के साथ हमें संगति रखनी चाहिए। You should not be bothered about what people's opinion. लोगों का नजरिया क्या है, उसके बारे में आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। You have to die to all that
you are hearing about what people are talking about you. लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनने के लिए आपको मर जाना होगा। Don't go have fellowship with dead people who cannot be able to help you. ऐसे मरे हुए लोग जो आपकी मदद नहीं कर सकते, उनके साथ संगति मत कीजिए। We have to go and fellowship with people who have that kind of faith, who will stand up for Jesus. हमें ऐसे लोगों के साथ में संगति रखनी है जिनके पास में विश्वास है और जो यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे। You have to keep company with people who have the like-minded faith like you. आपको उन्हीं लोगों के साथ में संगति रखनी चाहिए जो आपके जैसे विश्वास रखते हैं। Have fellowship with godly people परमेश्वर के भक्तिपूर्ण लोगों के साथ संगति so रखें that your faith may be strengthened. ताकि आपका विश्वास बलवान हो जाए। Don't keep fellowship with people who will pull you down. अब ऐसे लोगों के साथ में संगति मत रखिए जो आपको नीचे खींचेंगे। Do not hang with people who will not share your faith. और उन लोगों के साथ में मत रहिए जो आपके विश्वास को नहीं बांटते हैं। We should focus on the vision. हमें दर्शन पर गौर करना है। We have to focus on the mission. हमें मिशन पर गौर करना है। We should not dwell on failure and we should not dwell on defeat. हमें असफलता और हार में बने नहीं रहना है। We have to hang around with people of faith. हमें विश्वास के लोगों के साथ में संगति रखनी है। Make sure you are a person of faith, my friend. मेरे दोस्तों, निश्चित कीजिए कि आप विश्वास के व्यक्ति हैं। And also you encourage people to stand firmly in faith. और आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी विश्वास में मजबूती से खड़े रहें। Do not pull down people or do not discourage people who have a vision for God. जिन लोगों के पास परमेश्वर के लिए दर्शन है, आप ऐसे लोगों को नीचे मत खींचिए, उन्हें निराश मत कीजिए। Be a person of faith आप विश्वास के व्यक्ति हो जाइए। when others are around you and they fail. और जब आपके आसपास के लोग असफल हो जाते हैं तो Yes, you should feel encouraged in the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रोत्साहित महसूस करना है। What happened when they heard the threatening? जब उन्होंने इस दहशत को सुना, धमकाए जाने को सुना, तो क्या हुआ? They went back to their own company वो अपनी संगति में, अपनी मंडली में वापस गए and rejoiced with them. और उनके साथ में आनंद मनाया। And look at what kind of prayer they made. और देखिए उन्होंने किस तरह की प्रार्थना की। Verses 25. So when they heard, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord, against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you appointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before me to be done. वचन 24 से आगे पढ़ते हैं। ये सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों में हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और तेरी मति से ठहराया गया था वही करे। And if you look further down, they prayed for boldness. और यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो उन्होंने इस हियाव के लिए प्रार्थना की। People today want to speak what people want to hear. आज लोग वही बोलना चाहते हैं जो कि लोग सुनना पसंद करते हैं। We are not here to speak what people want to hear. हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि वही बोले जो लोग सुनना चाहते हैं, But we are here to speak what the word of God speaks. लेकिन हम यहाँ पर इसलिए है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वही बोलते जाएं। If you look into this chapter, you'll see they came together and they did not complain about the problem. आप इस अध्याय को पढ़े तो आप पाएंगे कि वो एक साथ में आए और उन्होंने समस्या के बारे में शिकायत नहीं They की। immediately said how great God was. और उन्होंने तुरंत कहा कि परमेश्वर कितने महान हैं। And they worshipped God. और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। And they said that people are threatening us and give us boldness. उन्होंने कहा कि लोग हमें धमका रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आप हमें हियाव दीजिए। When they came together and they prayed like that, the whole place shook.
और जब वो इस तरह से एक साथ आए और इस तरह से प्रार्थना की तो वो पूरी जगह हिल गई। That is what it says in verses 31. और- When they prayed, the place they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. वचन 31 कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Yes. So what happened when they started praying and they came together in unity? They prayed for boldness, and when they prayed with unity, the place shook and the place was shaken completely. और क्या हुआ जब वो वहां पर एक साथ आए, एकता में आए, प्रार्थना की तो प्रार्थना के कारण वो पूरी जगह हिल गई और वो वहां पर हियाव से प्रचार करते रहे। Don't be overwhelmed with your problem. Don't be overwhelmed with your situation that are coming against you. आपके विरुद्ध में जो समस्याएं आती है, परिस्थितियां आती हैं, उसके दबाव में दब कर मत रहिए। They brought this first, they said, they praise God for His greatness. सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर की महानता के लिए परमेश्वर की स्तुति की। Today I am asking you to pray for boldness in your life. आज मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में हियाव के लिए आप प्रार्थना कीजिए। And what happened when they prayed for boldness? और जब उन्होंने हियाव के लिए प्रार्थना की तो क्या हुआ? The Bible says the whole place shook. बाइबल कहती है कि पूरी जगह हिल गई। Then they asked God to equip them for the commission which God placed before them. और परमेश्वर ने उनके लिए जो काम रखा था उसके लिए उन्होंने उससे आज्ञा मांगी। It is good to ask God to demonstrate His power in our life. और अच्छा है कि हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ प्रकट करें। Today, this morning, I am asking you to pray to God for power to be endued upon your life. आज मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में भर जाए। I speak today that God will show how God can utilize you if you are a person filled with power. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपका कैसे उपयोग कर सकते हैं। God can fill each and every person with His power if you have boldness in your life. अगर आपके जीवन में हियाव है तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी सामर्थ से भर सकते हैं। God wants to do something wonderful and great in your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत करना चाहते हैं। God wants to shake you this morning. परमेश्वर इस सुबह आपको हिला देना चाहते हैं। God wants to take away the complacency in your life. आपके जीवन की सारी रुकावटें और हिचकिचाहट को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। God cannot use a dead person. परमेश्वर मरे हुए व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। God wants to use a person who will be full of energy and full of power for Him. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना चाहते हैं जो उसकी शक्ति से, उसकी सामर्थ से भरा हुआ हो। You should ask God to fill you with more and more power in your life. आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में आपको और ज्यादा सामर्थ से भर दे। God cannot give you if you do not use what is given in your life. परमेश्वर ने जो आपके जीवन में दिया, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको और ज्यादा नहीं दे सकते। How can you receive more power if you do not utilize what God has given to your life? परमेश्वर ने जो आपके जीवन में दिया है, आप उसका कैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। Yes, God does not come into your life, you will feel very miserable in your life. अगर परमेश्वर आपके जीवन में ना आए तो आप अपने जीवन में बहुत ही दयनीय महसूस करेंगे। Yes, you will not be enjoying the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं You उठाएंगे। will be a dejected person, you will be a depressed person. आप त्यागे गए व्यक्ति होंगे, आप निराश व्यक्ति होंगे। That is not the purpose and the plan of God for your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य नहीं है। God wants to do something wonderful and great in your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत करना चाहते But हैं। this morning, God wants you to yield to His presence. लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में अपना समर्पण करें। You should be using what God has filled you this morning. परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको जिससे भरा है, आपको उसका उपयोग करते चले जाना है। When you know what God has given to you, जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, in season and out of season, समय और असमय, then you'll be a powerful force in the kingdom of God. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में एक बहुत ही सामर्थ हो जाएंगे। You have to have a consistent life, my friend. मेरे दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही स्थिर और निरंतर रहेगा। God wants to transform your mindset. परमेश्वर आपकी मानसिकता को बदल देना चाहते हैं। God has called you this morning for a special mission
for a special purpose, for a special plan. परमेश्वर ने आज आपको बहुत ही विशेष उद्देश्य, विशेष मिशन और विशेष योजना के साथ बुलाया है। You have to carry on what God has called you for. आपको जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आपको उसमें आगे बढ़ते चले जाना है। Every instant in your life, आपके जीवन की हर एक घटना, in season and out of season, समय और असमय, great things should come out of your life. आपके जीवन से महान बातें आनी चाहिए। You should say, Lord, in season and out of season, Lord, use me mightily for your kingdom. आपको कहना है, प्रभु समय और असमय आप मुझे मेरे जीवन में सामर्थ्य रीति से उपयोग कीजिए। There may be persecution coming your way. शायद आपके जीवन में सताव हो, There may be problems coming your way. शायद आपके मार्गों में समस्या हो। That should not prevent you from standing for the name of God. ये आपको परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने से रोकने न पाए। God wants to change your spiritual life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बदल देना You चाहते may हैं। have persecution, you may have problems. शायद आपको सताया जाए, शायद आपकी समस्या हो। In all these things, you are a victorious person. इन सभी बातों में आप तो विजयी व्यक्ति हैं। God wants to bring you from victory to victory. परमेश्वर आपको विजय से विजय में लेकर आना God चाहते has हैं। got a great plan, a mighty plan for your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास महान और सामर्थ्य योजना You है। should know this morning whether you have the fire of God in your life. आपको इस सुबह जानना है कि क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आग है या नहीं। You have to pray harder and ask God, Lord, give that fire so that I may burn for you. आपको परमेश्वर से यही कहना है कि परमेश्वर मुझे वो आग दीजिए ताकि मैं आपके लिए जलता रहूं। Yes, believe God for what He has said for you परमेश्वर ने आपके लिए जो कहा है उस पर विश्वास कीजिए and confess it and see that signs and wonders are happening in your life. आप इसका अंगीकार करें और अपने जीवन में महान चिन्हों को होते हुए A देखें। Christian life is not an ordinary life. और मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं It's है। a life which is filled with signs and wonders. ये तो ऐसा जीवन है जो चिन्ह से भरा हुआ है। God wants to do mighty things, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर सामर्थ्य काम करना चाहते God हैं। wants to release His power in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य खोलना चाहते हैं। God expects you to do something wonderful for Him in this lifetime. परमेश्वर चाहते हैं कि इस जीवन काल में आप उसके लिए कुछ अद्भुत काम करते जाएं। When we pray, the prayer power is released in your life. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की सामर्थ्य आपके जीवन में खोली जाती है। When the early Christian prayed, the place was shaken. जब शुरू के विश्वासियों ने प्रार्थना की तो वो जगह हिल गई। That is the kind of prayer God wants you to make. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसी तरह की प्रार्थना करें। There is prayer power in everything you do when you pray according to the will of God. जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की सामर्थ्य आपके लिए यही तो करती है। God wants to fill you with His power this morning. परमेश्वर आज सुबह आपको अपनी सामर्थ्य से भर देना चाहते But you हैं। should have a thirst for His kingdom and for the righteousness of God. लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी धार्मिकता के लिए भूख और प्यास रखनी है। Then great things can happen in your life. तो आपके जीवन में महान बातें I होगी। told you earlier, you're not an ordinary person. मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति You're an नहीं हैं। extraordinary person. आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। You should expect supernatural things to happen in your life. आपको अपेक्षा करनी है कि अपने जीवन में, आपके जीवन में अलौकिक बातें होती Because the जाएं। God you worship is a supernatural God. क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो तो अलौकिक You परमेश्वर है। should always be filled with the Holy Spirit. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से भर जाना That चाहिए। is what it says in Ephesians 5:18. It says, be filled always. It is in present tense, always being filled. अब इसीलिए तो इफिसियों में इस तरह से कहता है कि तुम आत्मा से भरते चले जाओ, यानी And हमेशा वर्तमान में। God wants us to be always filled with the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहें। If you are anointed with the Holy Spirit, अगर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक when पाया the है, power of God is upon your life, जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके you will जीवन not पर be है the same person. तो आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं You रहेंगे। will move from an ordinary realm to a supernatural realm. आप एक साधारण क्षेत्र से निकलकर अलौकिक क्षेत्र में आ जाएंगे। Power of God will touch you this morning, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर की सामर्थ्य आज सुबह आपको छू
खुलेगी। Do you want to experience that power? क्या आप उस सामर्थ का अनुभव करना चाहते Do you हैं? want to experience that prayer power? क्या आप इस प्रार्थना की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं? The first step you have to do is to accept Jesus as your personal savior. आपको पहला कदम यही करना होगा, उठाना होगा कि आपको यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। When you accept Jesus as your personal savior, जब आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, old things will pass away. पुरानी बातें बीत जाएगी, Everything will become new. सब कुछ नया हो जाएगा। You will be a transformed person. आप एक बदले हुए व्यक्ति You will be a होंगे, different person. आप अलग व्यक्ति होंगे। This morning I ask you, my friend, मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे पूछता हूँ, to receive the savior in your life. अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को ग्रहण New करें। meaning will come into your life. आपके जीवन में नया अर्थ आएगा। You will be filled with the prayer power in your life. आप अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ से भर जाएंगे। God will take you from a mediocre level to a supernatural level. परमेश्वर आपको मध्यम स्तर से उठाकर ईश्वरीय स्तर में लेकर जाएंगे। God wants to bring a great transformation in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते Do you हैं। want a blessing? आपका आशीष चाहते हैं Then receive Jesus this morning. तो आज सुबह आप यीशु को स्वीकार करें। If you have been blessed with this message, अगर आप इस संदेश के द्वारा आशीष पाए हैं, our number is on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पर है, You can call on us आप हमें फोन कर सकते or हैं you can WhatsApp us. या फिर व्हाट्सएप कर Our सकते हैं। prayer warriors are always ready to receive your call. हमारे प्रार्थना योद्धा हमेशा तैयार हैं कि आपके फोन कॉल को लें। God's purpose this morning is to bless you आज परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि वो आपको आशीष and दे fill you with power. और अपनी सामर्थ्य से आपको भर दे। Believe that you are not an ordinary person. विश्वास कीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। Believe you are a supernatural person. विश्वास कीजिए कि आप ईश्वरीय व्यक्ति, अलौकिक व्यक्ति हैं। Expect great things to happen in your life. अपने जीवन में महान कामों की होने की अपेक्षा कीजिए। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you this morning. स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Lord, we know what can prayer do and transform in our life. हम जानते हैं प्रभु की प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है और क्या बदल सकती Like है। the early Christians, Lord. शुरू के विश्वासियों के जैसे। Lord, when we pray, that place should be shaken, Lord. और प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जगह हिल जाती We है। are a people who can turn the place upside down. हम ऐसे लोग हैं जो पूरे उथल पुथल कर सकते हैं। Yes, let us not be so bothered about the persecution. प्रभु, हम सताव के बारे में परेशान ना हो। If supernatural things should happen, then supernatural persecution will happen in our life. अगर हमारे जीवन में ईश्वरीय काम होने तो हमारे जीवन में ईश्वरीय सताव भी होगा। But in all these things, we are overcomers लेकिन इन सारी बातों में हम तो जयवंत से बढ़कर हैं, because your presence is with us. क्योंकि हम आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। Thank you for speaking to us this morning. आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना May करते God हैं। bless you. प्रभु आपका आशीष दे। Journey from earth to glory. All I ask to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. All I ask to be